ददाशत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी लोकाष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय नारायण नमः। ओम नमो नम्योड़े मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय पीड़ां सर्वरोग निवारणं ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा तं ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। एक बार गहरी लंबी सांस ले लीजिए और दोनों लंग्स को विजुअलाइज करिए। 3 गहरी लंबी सांस लेके दोनों लंग्स को पूरा फुला लीजिए, बिल्कुल डायफ्राम को ऊपर करके रिब केज को पूरा एक्सपैंड कर लीजिएगा और विजुअलाइज करिए कि जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, वो पूरे कण कण आपके एक एक कोशिका, एक एक सेल्स में, एल्वियोलस में, एक एक एल्वियोलाई में, it is going and rejuvenating your lungs. The whole oxygen is penetrating each cell of your lung and it is throwing away all the virus, all the ribonucleic acid which has in form of virus, in form of corona, which has infected your lung and fibrosis was there. So it is throwing away and your each cell is rejuvenating, revitalizing, and whole lung, bronchiole, bronchioli, all are revitalized, re-energized. So your core center, your core energy is enhanced. Your high heart center is thinking with heart. Your core center, 60 centimeter above your head and 60 centimeter below your feet. 24 inches above your head and 24 inches below your feet. You are grounded and your universal calibration lattice is balanced. Your universal calibration lattice is balanced and you are expanding the loops on sideways of your core center, the loops from top to bottom. They are free of all the blockages, of all the nodules which are not letting your infinite potential to rise. So your infinite potential is raised. You're connected to the divine and cosmic energy is flowing into you and you are grounded to the earth, your core center, core energy center. All the templates from your phase 1, which is from your head to this place where Tirthankar have this symbol. And the second phase template is from here to your buttocks and then to your knees. So you are focusing on the second template. And third is from your knees to your feet. And then the core center, 60 centimeter above your head and 60 centimeter below your head. So all are in alignment in your universal calibration lattice, core center. Om, Om, Om. Divine energy. You are omnipotent, you are omniscient, you are all powerful, you are present everywhere.
You are omnipotent, you are all powerful, you are omniscient, you are all, you can be present anywhere in this world. You are omnipotent, you are omniscient, and all divine powers, all core energy, your universal calibration lattice is in alignment. And your aura is expanding, expanding, expanding. Your aura is expanding, expanding, expanding. And all fears are being erased. All fears are being erased. Root cause of disease is fear of disease. And unless and until you throw away that fear from your mind, body, and soul, disease will not go away. Disease will not go away. कल देखो मैं उनको छू के भी आई थी, उनके हृदय पे हाथ रख के आधा घंटा सुनाया, उनके लंग्स जिनमें पानी भर गया था उनमें हाथ रख के। और जबकि वो जया जी मेरे से, जया जी जो पीएचडी करे, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, वो तेरा पंथ की, वो मेरे से बार बार कहें कि आपने डबल मास्क पहना है या नहीं। और रजनी जी के साथ बैठ के, और वहां पे जैसे ही मैं ये मेडिटेशन करा रही थी एस्ट्रल सर्जरी का, पूरी नर्सेस आके वहां खड़ी हो गई थी, 4 नर्सेस, वो चाहे 1 घंटा खड़ी रही। एनर्जी, यू कैन फील द एनर्जी। एनर्जी को कोई भाषा की जरूरत नहीं होती। You can just feel the divine energy. When energy penetrates your body, it will erase all your sickness. और बुआ जी आपकी एकदम, हम सब मंगल कामना करते हैं। और सुधीर जी ने भी सब डेली चैंटिंग ग्रुप को बहुत बहुत थैंक्स बोला है, और बोला है मैं शीघ्र ही 48 दीपक का विधान कराऊंगा घर जाके, डेली चैंटिंग ग्रुप के साथ मुझे कराना है, बहुत अच्छा विधान, पूरे चांदी के दिए लेके पूरे करूंगा, तो ऐसे उन्होंने बोला है। जी शशि बुआ जी अनम्यूट कर। हाँ जी, इस टाइम जो मेरे को मेन प्रॉब्लम है ना, वो है लीवर में इन्फ्लेशन आई हुई है, और पेनक्रियास जो है उसमें स्वेलिंग है सारी, और पस सेल्स आ रहे हैं, यूरिन में पस सेल्स हैं, तो वो इंक्रीज हो गए हैं अब। मतलब ना पहले कम था, मेरे को लेके जा रहा था कि पार्क में बैठोगे तो अच्छा लगेगा आपको, वहां पे खुला होता है, अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे से चला नहीं जा रहा। आज गई नहीं फिर मैं। तो ऐसे है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। आज कल डॉक्टर भी चेंज कर दिया वैसे, तो उम्मीद है कि इससे ज्यादा ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने इतनी वो भी दी है, हीलिंग दी है इतनी, और इतनी ज्यादा इस माइंड रिलैक्सिंग भी है इस टाइम। डर तो मुझे बिल्कुल नहीं है, डर नाम की चीज मेरे में नहीं है बिल्कुल। मतलब कल जैसे लगता था ना मेरी टांगों में जान नहीं रही, तो मेरे को तब भी डर नहीं लग रहा था। आखिर तो छोड़ना ही है शरीर, तब भी डर नहीं था बिल्कुल। तो आज तो बेटर हूँ। अब एकदम बेटर हो जाओगे। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, मेरी मदर इन लॉ को भी हो जाता, पर वो ठीक हो जाता है। वो कोई एक वो टैब आती है जिससे ऑरेंज कलर का यूरिन आ जाता है, और उससे फिर ठीक हो जाता है। उसका नाम कुछ पी से है टैबलेट। तो कोई नहीं, आपका लिवर और पेनक्रियास का जो कुछ स्वेलिंग आ गई होगी या कुछ हो, या इन्फेक्शन, वो बिल्कुल आफ्टर कोविड हो जाता है। जिनको ज्यादा होता है ना उनको हो जाता है बाद में। तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओ बिना कोई उसके, बस घर पे रह के ठीक हो जाओ, यही भावना भाते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भुग्ना सोचम दशाम पाद पंकज रजो मृत्युग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरधस्तुल्य रूप। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरूप शमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। विजुअलाइज करो बुआ जी, आप अपना लिवर का डायग्राम याद करो, लिवर का डायग्राम याद करो, विजुअलाइज करो, एकदम उसका कलर देखो कितना रेड वैसा है।
अच्छा, दो लोब्स हैं लिवर का, एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है, और उसके ऊपर गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट पूरा जूस दे रही है डाइजेशन के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। और इधर देखो स्टमक के बाजू में पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, पेनक्रियास, एक चूहे का आकार का, रैट का शेप का, और उससे पूरे जूसेस आ रहे हैं और वो एक्टिवली पार्ट्स कर रहा है। और आपके दोनों लिवर और पेनक्रियास एकदम रिजुवनेट, रिवाइटलाइज हो जाए, पूरे उनमें से इन्फेक्शन निकल बाहर फेंक जाए, पूरा इन्फेक्शन इज थ्रोन अवे, your liver is cleansed thoroughly, each tissue of your liver is rejuvenated, revitalized, your pancreas become active, all the cells of the pancreas become active, your pancreatic gland, your pancreatic juice is in proper quantity. Both your liver and pancreas are infection free. Both your liver and pancreas are rejuvenated, revitalized. Liver and pancreas are rejuvenated, revitalized. Liver and pancreas are rejuvenated, revitalized. Liver tissue is rejuvenated. Each cell of liver is rejuvenated. Your pancreas is rejuvenated, revitalized. Liver are rejuvenated, revitalized. Liver and pancreas are rejuvenated. एक कोशिका, एक टिश्यू पूरा rejuvenated, revitalized. धीरे बोलो, मान रखो। जय जिनेन्द्र, बदनामी माता जी। थैंक यू दीदी। शशि बहन जी, आप बिल्कुल ऐसी हंसता हुआ चेहरा आपका हमेशा रहेगा, कुछ नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी मंगल पाठ सुना दो सब। मंगल पाठ सुना जी महाराज जी। शशि जी को ठीक नहीं है क्या? नहीं, बाद में बात करेंगे। महाराज जी उनको लिवर में और पेनक्रियास में थोड़ी इन्फेक्शन आई है और पस सेल्स की प्रॉब्लम लग रही है। चलो परमात्मा ठीक करेगा, सब प्रभु की कृपा से ठीक। ये सारे स्वेलिंग हो गई ना उससे, ये हाँ पेट हो गया। मंगल पाठ सुना दो। जी हाँ जी। नमो अरिष्टानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो लोए सब्ब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवई मंगलम। उवसघरम पासम पासम वंदामि कमघनमुक्कम विसर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर पुलिंग मंत्रम कंठे धारेगी जो श्यामनो तत्सद्ध रोकुमारी दुष्ट जरा जंतु वो समम चिट्ठा दुरे मंतो तुझ्य पनामो विबोफलो है नरतिरि एतवी जीवा पावंती न दुख दुर्गचम तोह समपलते चिंता मणि कपपायो भये पावंती अभिज्ञानम दिवायन मरण ठाणम य संतोमा यस भक्ति भरणे भरणे के न ता देव दिच्च बोहिं भवे भवे पास जन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूलि भद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता उपसर्गा क्षयम्यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोलो विजय श्री महाराज। बोलो विजयवल्लभ श्री महाराज की जय। ओस्त्रा जी पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। शशि बहन, हाँ जी, हाँ जी, सही। ज्यादा एरिया में पाठ करो।
इरिया वह्यम का पाठ ज्यादा करो। हेलो, शशि बुआ जी म्यूटेड है। माता अच्छा जी आप सुना दीजिए ना वो पाठ, एरिया वलियम का पाठ आप सुना दीजिए माता जी। महाराज साहब सुनाई दूंगी, पर उनको भी वो करते रहेंगे ना, क्योंकि इरिया वह्यम परिकमामि इच्छम इच्छामि परिकमयो एरिया वह्याय विरहानाय गमना गमने पानक कमने बियक कमने हरिय कमने उषा उत्तिंग पनघ दग्ग मट्ठी मकड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराहिया एहिंदिया विहिंदिया तेहिंदिया चोरिंदिया पंचंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघटिया परियाव्या किलामिया उदबिया उठानो उठानो संकामिया जीविया बबरोया तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये आप इरावे का पाठ ज्यादा करना, अच्छा जी सर, है ठीक ना है। प्रभु? हाँ जी ठीक है सर। ऐसा आनंद आता है। महाराज साहब एक निवेदन है आपसे, हाँ प्रभु। ये जब जो भी कोई दिवस आते हैं हम लोगों के, उस पे जरूर उस दिवस के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया कीजिए। अब जैसे अभी वो शुद्ध पंचमी आएगी 15 को, तो आपसे निवेदन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप अगर बताओगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महाराज साहब कल ये भगवान- लाडू चढ़ाए थे शांतिनाथ भगवान के, इतने सारे लाडू बना के, वो विधान चल रहा है ना 3628 अक्षर, शांतिनाथ भगवान का पूरा। हाँ शांतिनाथ भगवान का था। तीन कल्याणक थे उनके तो। हाँ हाँ, तीन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। 3 कल्याणक। तो 13 को थे, एक कल्याण चतुर्दशी का था हाँ जी कल्याणक। और शांतिनाथ भगवान तो विश्व में शांति करने के लिए ही पैदा हुए थे, उनका अवतरण ही इसीलिए हुआ था। वो शांति शांति कर श्रीमान शांति दिशतु महे गुरु शांति रे सदा तेषां येषां शांति मुद्रे करे। हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य नहीं, जीव मात्र के कल्याण में, जीव मात्र के जीवन में शांति शांति का वास हो, बस ये तो उनका हेतु था परमात्मा का। आचार्य विद्यासागर जी भी जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान है ना, वहाँ पूरे जीर्ण उद्धार कराते। रामटेक में जो शांतिनाथ भगवान है, जो उधर जाता है उसके सब रोग क्षय सब दूर हो जाते। उसका पूरा इतना करोड़ों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जैसा कुंडलपुर है वैसा बना। और वो एक और जबलपुर के पास जगह है, वहां भी खड़गासन शांतिनाथ भगवान है। आचार्य श्री हर बार जाके वहाँ चौमासा करते हैं। जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान है वो बहुत उनका शांतिनाथ भगवान का बहुत अच्छा। और वो है ना चेतन का, मैं फोटो भेज दूंगी हाँ आपको। जी महाराज जी। इनको मंजू जी को भेजा ना चेतन का फोटो। ओके ठीक है, मैं फॉरवर्ड करती हूँ। हाँ जी जी ठीक है। ये मंजू जी, किसी का सवाल है कि पेन के लिए कौन सा श्लोक, अगर किसी को पेन हो 45 श्लोक से निकल जाएगा। उसमें रोग कष्ट जरोपशमनम, कष्ट यानी पेन, उससे निकल जाता पूरा पेन 45वें श्लोक से। और 17वां श्लोक का जो है, ओम नमो नमि उड़त्ते मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। पीड़ा यानी वही तो है दुख दर्द पीड़ा, वो भी सर्व पीड़ा निकल जाए, क्षुद्र से शुद्र पीड़ा निकल जाए। कितने दिन से नयन अंकल का वो नहीं सुना है कवच, नयन अंकल का सुनना है, बहुत दिन हो गए। आज आप पहना दो इनको, शशि आंटी को अच्छे से कवच, जरा शशि आंटी की तबीयत ठीक हो जाए। सच्चे बोलूं मैं, मासा जी जैसे मंजू दीदी का खत्म हो गया, मासा जी ने बोला, तभी मेरे दिमाग में सोचा कि मैं आज शशि बुआ को रोग निवारण मंत्र और भय निवारण मंत्र मैं सुना देता हूँ। और मंजू जी ने मुझे आदेश भी दे दिया। ये भी तो प्रभु की बलिहारी है, सच्ची में बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मंजू दीदी। बस मैं वही आपके टाइम मैंने सोचा कि मैं आज सुना देता हूँ। बिना कहे पहुंच जाती है आवाज, बिना कहे इसको अंतरात्मा बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं। ओम नमो अरिहंतालम, ओम नमो सिद्धालम, ओम नमो
आयरियाणाम् ॐ नमो उवज्जायाणाम् ॐ नमो लोय सब साहूणाम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम् ॐ नमो उवज्जायालम् ॐ नमो लोय सब साहूनाम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम् ॐ नमो उवज्जायालम् ॐ नमो लोय सब साहूनम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो स्खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम् ॐ नमो उवज्जायालम् ॐ नमो लोय सब साहूनम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम् ॐ नमो उवज्जायालम् ॐ नमो लोय सब साहूनम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम् ॐ नमो उवज्जायालम् ॐ नमो लोय सब साहूनम् ॐ नमो आमो सहिपत्तालम् ॐ नमो खेलो सहिपत्तालम् ॐ नमो जल सहिपत्तालम् ॐ नमो विपो सहिपत्तालम् ॐ नमो सवो सहिपत्तालम् एसिं नमोकारं किच्चजमीयं विजय ॐ जामि सामे विज्जापसि जां स्वाहा ॐ नमो अरिहन्तालम् ॐ नमो सिद्धालम् ॐ नमो आयरियालम्
ओम नमो उवज्जायानम, ओम नमो लोहे सब साहूनम, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जल सही पत्तानम, ओम नमो विप्पो सही पत्तानम, ओम नमो सव्वो सही पत्तानम, एसिम नमोकारम किच्च जमीयम विजय, ओम जामी सामे विज्जापसि जाऊं स्वाहा, ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो उवज्जायानम, ओम नमो लोहे सब साहूनम, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जल सही पत्तानम, ओम नमो विपो सही पत्तानम, ओम नमो सव्वो सही पत्तानम, एसिम नमोकारम किच्च जमीयम विजय, ओम जामी सामे विज्जापस जाऊं स्वाहा। मैं जब रोग निवारण मंत्र बोल रहा था, मुझे रोग निवारण मंत्र बोलते वक्त कोई भी अक्षर शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे अव्यवस्थित विपरीत तरीके से उच्चारा गया हो, बना गया हो, बुलाया गया हो, और जिस श्रावक श्राविकाओं ने ये सुना और उनको मेरे थकी कोई भी पाप दोष लगा हो, तो ये सब मिला के श्री अरिहंत अनंत सिद्ध केवली भगवान को साक्षी मानकर हम सब बोलते हैं तस्मिच्छामि डोकदम, तस्मिच्छामि डोकदम, तस्मिच्छामि डोकदम। भय निवारण मंत्र। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम, ओम ह्रीं सर्व भय निवारणाय नमः। मैं जब भय निवारण मंत्र बोल रहा था, मुझे बोलने में कोई भी अक्षर शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज्यादा विपरीत तरीके से अव्यवस्थित तरीके से पढ़ा गया हो, उच्चारा गया हो, बोला गया हो, और जो श्रावक श्राविकाओं ने जब मैं भय निवारण मंत्र बोल रहा था उन लोगों ने सुना, और उन लोगों को सुनने में मेरे थकी कोई भी पाप दोष लगा हो, तो श्री अरिहंत अनंत सिद्ध केवली भगवान को साक्षी मानकर सभी की तरफ से मैं तस्मिच्छामि डोकदम, तस्मिच्छामि डोकदम, तस्मिच्छामि डोकदम। हे श्री पंच परमेष्टि देवाय, हे श्री 24 तीर्थंकरो, અમારા ભક્તમય પરિવારના સદસ્ય શ્રી શશી બુઆજી ને શરીરમાં જે કોઈ રોગ है, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करो, दूर करो, दूर करो। जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद नयन भाई। अभी जैसे मंजू जी ने बताया था 2668 बीज मंत्रों का विधान वो त्रियोग आश्रम शिखर जी में हो रहा है। मैंने कल उसका लिंक डाला था, बहुत अच्छा हो रहा है। दोपहर को इंडिया के टाइम से 1 बजे से 4 बजे तक होता है। आप लोग अवश्य जुड़िए, बहुत ही सुयोग्य तरीके से वो हो रहा है। अनुराधा भाभी जी, आपको मैंने अनम्यूट करने का मैसेज डाल रहा हूँ, कृपया कर एक बार अनम्यूट कीजिए।
जय जिनेंद्र अनुराधा भाभी, आप अनम्यूट नहीं हुए हो, मैं आपको फिर मैसेज देता हूँ। अभी दिया मैंने। अच्छा, नहीं हुए। हो गए। अनुराधा भाभी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज आप 5 मिनट कुछ बताएंगे? ऐसे टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मैं जस्ट आपसे पूछना चाहती थी कि मेरे पास 3 टॉपिक्स हैं। एक तो है श्रावक के 36 कर्तव्य, एक है पाप स्थानक, तीसरा है कर्म फिलॉसफी। आप जिस पर कहो तो मैं उसकी थोड़ी सी आप पढ़ के तो आपको शुरू करती हूँ, जब भी मतलब कल परसों तक कभी भी। श्रावक के कर्तव्य। ठीक है, तो मैं जिस दिन भी मेरे को टाइम हुआ आपने दिया तो मैं एक दिन पहले मेरे को बता देना, ताकि मैं 10 मिनट 5-7 मिनट के लिए आपको सुना दूंगी। और दूसरी बात मैंने मंजू जी, जो पहले मैंने एक तो सिटिंग में बताया कि हमारे जैनिज्म की जो बेस है जैनिज्म की, वो 4 भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चारों भावनाओं को अपने डेली रूटीन में, अपने घर में भी, बाहर भी, बच्चों के साथ भी, समाज के साथ भी ये भावनाओं का प्रयोग करें कि हमें मैत्री भावना कैसे जीवन में लानी है। प्रमोद भावना का अर्थ यही है कि हमें खुशी से मतलब है कि हम दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे की अच्छी बातों को देखकर खुश होएं। ये नहीं कि हमने कोई अच्छा काम कर लिया खुश हो गए, नो। दूसरे में जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जैसे मंजू जी, सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ, जैसे आप में जो क्वालिटी है उसको देखकर हमें मेरे को तो इतनी खुशी होती है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जुगों जुगों तक जिए और हमें भी कुछ अंश उसका मिल जाए। दूसरों को देखकर दुख कैसे होता है, खुशी कैसे होती है। कोई अच्छा हो जाता है आपकी हीलिंग से तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है, और किसी को दुखी देखकर आपको दुख भी होता है। तो आप जैसी जो क्वालिटी है हम सब में आए, सारे जो हमारा ये परिवार है इसमें सभी में ये क्वालिटी आए, तभी हमारा फायदा है इस क्लास को अटेंड करने का। अगर अदरवाइज तो आए, सुना, हमने भी बोला और चले गए। तीसरी है करुणा भावना। किसी भी बीमार को, किसी दुखी को देखकर हमारे दिल में करुणा आनी चाहिए। आजकल ये प्रचार हो गया है कि कोई भूखा है उसको रोटी खिला दो। रोटी खिलाने के अलावा हमें थोड़ी उसके लिए दया भावना कि उसने कैसे कर्म किए हैं, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करो कि ये सब, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, ये हमारे कर्म ही है जो हमें ये सब दिखा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति तो एक निमित्त बनता है और ये हमारा ही है, इसलिए हमें कदम कदम पर हमेशा जागृति से रहना चाहिए। और यही जैन धर्म का मेन उपदेश है कि हर मिनट हमें जागृति से रहना चाहिए। तीसरी बात है जो मेरे दिमाग में आई कि हमें कभी भी किसी की बुराई को नहीं देखना। हमारी जो गुण दृष्टि है, हमारी हमेशा गुण दृष्टि रहनी चाहिए। जो किसी में गुण है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, सभी को पता है। कौवे में क्या है, कोई गुण, क्या काका काका करता है। कोयल काली होने के बावजूद भी किसी की आवाज बहुत अच्छी है, गाने में सुर बहुत अच्छा है, तो हम क्या उपमा देते हैं, कोयल जैसी आवाज है। तो ये 3-4 चीजें। और चौथी लास्ट है कि हमारे दुख का मेन कारण है एक्सपेक्टेशंस। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। ये जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए, हमारी गुण दृष्टि हो जाए, हम 4 भावनाओं को अपने जीवन में ले आए, तो मैं और कर्म फिलॉसफी को कि हमारे जो हमें दुख आता है, फिजिकली को दुख आता है, मेंटली आता है, किसी तरह का भी, सामने वाला कोई निमित्त नहीं है, हमारे अपने ही कर्म निमित्त बनते, हमारे अपने ही कर्म प्रैक्टिकल आते हैं, सामने आते हैं। इसलिए हमें पल पल में अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए ऐसे कर्म कोई ना करें कि जो हमारा अगले जन्म में, इस जन्म में, कभी भी 10वें जन्म में, क्योंकि इंसान जो है 48 लाख जीव योनियों में से घूमता है, किसी जन्म में भी कर्म उदय आ सकते हैं। तो इसलिए जैनिज्म के जो मेन बेस है, इनको ध्यान रखते हुए हम जो भी आगे से पाठ करेंगे, जो मैं भी आपको, जो मेरे विचार हैं, जो मैंने पढ़ा है, तो बेस वही सभी की है, पूरे जैन धर्म की बेस वही है। इसलिए हमें पहले अपनी बेस को ठीक करना है। बेस को ठीक करना है 4 भावनाएं, नो एक्सपेक्टेशन और गुण दृष्टि।
ये सारी चीजें जीवन में धीरे धीरे एकदम नहीं आएगी, धीरे 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 कोशिश करें अपने को जागृति से। हमने किसी की बात की, निंदा की, क्यों की? तो उसका कर्मबंध हो गया। तो इसलिए किसी की बुराई देखकर निंदा तो करनी नहीं है। अक्सर हम ग्रुप में बैठते हैं तो एक दूसरे की बातें करते हैं, भाव हमारे क्या है वो अपने को पता है, अपने को पता है। इसलिए हमें हमेशा उस बंदे में जिसमें इतनी बुराइयां हैं ध्यान रखो कि उसमें गुण भी है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया मेरा, थोड़ा कल उपवास भी था, परसों भी था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही बोलने में। तो अब जब भी टाइम मिला तो श्रावक के 36 कर्तव्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। बुक है मेरे पास, मैं थोड़ा थोड़ा उसकी रीडिंग भी करूंगी, जो जितनी मेरी समझ है उसको समझाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, So बहुत बहुत beautiful, धन्यवाद आंटी। भाभी जी। बहुत आपने मेन पॉइंट्स कवर किए, वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड सो ब्यूटीफुल, सच में। थैंक यू सो मच आंटी। सुख साथ है के आपको। उपवास के बाद हाँ। वरना जी मेरे में कुछ नहीं है, सच्ची कहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे मन में ये भाव होते जो मैं पढ़ रही हूँ, जीवन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरों के साथ, जो मेरे साथी हैं जिसमें मैंने ये अपने को जोड़ा है, तो सभी के, आपके साथ नहीं, ओसा जी भी रही, वहां भी सबके साथ ऐसे शेयर करती रही। तो मेरा ये ना एक हॉबी कह लो, जो भी कह लो, मेरे अंदर से भाव उठते हैं कि जो मेरे को भगवान ने थोड़ा सा मेरे में है तो मैं शेयर करूं, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और मैं जागृति में रहूं कि मैं दूसरों को समझा रही हूँ, क्या मैं जीवन में अपने में ला रही हूँ कि नहीं ला रही। तो मेरे को भी ना अपने विषय में सोचने का मौका मिल जाता है। इसलिए बिल्कुल मेरी सही इच्छा है। है, क्योंकि जब हम बोलते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली अपने जीवन में आती तो हम उसको इधर उधर कर देते हैं। सही ठीक है, बिल्कुल सही है। बस, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच जय आंटी। जिनेंद्र। एंड Thank you. सबका हर समय मंगल में हो, यही भावना भाते हैं। अंकल आई नीड टू लीव, अगर कंटिन्यू करना है आई कैन मेक यू होस्ट। नहीं, रैप अप, Okay. रैप अप। चलो ठीक है, सबका हर समय मंगल में हो, कल मिलते हैं। आपका सुख जय साथ जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। है। सॉरी अनम्यूट भी नहीं किया सबको एंड में भी। ठीक है। तो जय जिनेंद्र सबको। जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र जी। हम एंडिंग द सेशन, ठीक है। और आज बहुत सुंदर हो गया सब कुछ। सब कुछ, बहुत कुछ कवर हुआ। यस यस, ब्यूटीफुल। थैंक यू।